Good morning to one and all present here. I, Anuja Palkar, Assistant Professor from Department of Journalism and Mass Communication, Tirak, Maharashtra Vidyapeeth, extend a hearty welcome to all of you today. Today we all have gathered here to witness an enriching exchange of knowledge on investigative journalism. As we know that today's talk is based on this very concept of insights into investigative journalism, which we know is about the world of uncovering truths and holding power to account. Investigative journalism is more than just reporting. It's about digging beneath the surface, connecting dots, and bringing hidden information into limelight. This session will be discussed in the form of a live interaction between Dr. Ujjwala Barve, Dean of Modern Sciences and Professional Skills, and today's guest of honor, Mr. Vinay Hardikar, a senior journalist, thinker, and writer. The session will be followed by question and answers, and then concluding remarks. Now, I would like to request our Dean, Dr. Ujjwala Barve ma'am, to please felicitate Hardikar sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Ujjwala Barve ma'am to please proceed with the session and enlighten the gathering. A very warm welcome to my senior friend, colleague, and somebody that I look up to, Mr. Vinay Hardikar, and a very warm welcome to all of you as well. This is going to be a chat, not too informal, but still a chat, a conversation that I would like you to pay attention to so that you can contribute to it, because whatever I miss asking him, I'm sure you can fill the gaps later and ask those questions that probably were not answered in our interaction. To introduce him briefly, I can tell you that what Anuja said, a senior journalist, thinker and writer. I think the next two adjectives are quite important. I mean journalist because he worked as a journalist, and based on that he has written this very interesting book. Those of you who can read Marathi should get a copy and read it. Express Puran, Express refers to Indian Express. Maji Shodha Patrakarita, his experiences of investigative journalism. So our dialogue is going to be loosely based on this. But before getting into journalism, Vinay Hardikar was associated with Jnana Prabodhini as a teacher. He has done his masters in English literature, was enrolled for PhD, and all of you are familiar with the emergency that was imposed in 1975. And Hardikar was against the emergency, and not only just in thoughts, but he actively participated in the protests and was sent to jail. And he was in the jail for a considerable amount of time. And the book that he wrote about his experiences of spending the time in jail and what kind of churning was happening inside the jail among the detainees and outside in the society. He wrote a wonderful book about it, so I recommend that as well. Those of you who read Marathi, Janansa Pravaho Chalala. He was very young at that time, but he shot to fame like anything with that particular book. And later on, he was picked up by Indian Express, which is like a dream come true, because all of you are journalism students. You also want to start your career with a very well-known and established media organization. But for that, probably we'll have to apply, appear for several interviews and then get a job that we want. But he was offered a job, a very special job, to work with Express. So we'll start from that point. So, you were approached by Indian Express for a very special task. Why don't you tell us about that? Firstly, good morning to all of you. And the funny thing is, I did my investigative journalism in English, but wrote a book in Marathi. आत्ताच मला ते तू बोललीस म्हणून लक्षात आलं. Maybe you can translate it into English. No, I don't translate my own thing. That's Allow me to translate. that's just repetitious. Okay. It doesn't bring me any pleasure.
You see, actually, I landed in Express because I was not accepted in Marathi papers. The great credit goes to the Sakal people. See, she told you about my book. It was a politically controversial. It was given a state award. In the meanwhile, the government changed. The award was withdrawn. There was a big controversy. Every next day, my name was in the papers. So I said, it's a good, what you call it, springboard to jump into journalism. And then I was a, what you call it, very simple-minded fellow. Ancient history now. So I said, I will approach with proper channel. So I went to Sakal first. All of you, those who are from out of Pune, University, you know Sakal and the position. See, the Sakal people had the temerity to tell me. I had MA in English, and my book was making news. They were printing that news. But they said, you will have to join as a junior trainee journalist. I said, I am MA in English, my book, this is nothing, that doesn't count here. So I left the matter there. Then I approached Maharashtra Times. The editor of Maharashtra Times was Mr. Govind Talwalkar, who later became one of my senior friends. But at that time, he was not exactly in favor of the emergency, but he was not in favor of the anti-emergency movement also. See, this is the typical indecision of the so-called intellectual. They are always sitting on the fence and taking care not to fall on either side of the fence. So he did not want me. He refused to see me. People did not allow me to even reach him. So I was damn exasperated. So I sent my biodata to Daryl DeMonte into Indian Express. And Daryl DeMonte also said, you have a good case, but he said, Express is too big. So you start writing in a local newspaper in Pune. It was Maharashtra Herald, no, Pune Herald. You start with a local newspaper in Pune or a smaller English newspaper like the Free Press Journal, so I can plead your case. So there also, it was a shut door. अब क्या करना होगा? इस बीच घटनाएं ऐसी घटी. A new newspaper was started in Bombay. There was a weekly called Blitz, and it was very popular. And it was an American style weekly. So a half nude photograph of a good looking girl at the back page and hot political news on the front page. It sold like hotcakes. So they started a daily newspaper called Daily, The Daily. And half of the Indian Express desk joined them. So suddenly there was space in the Indian Express. Then Daryl DeMonte, he was true to his word. He invited me for an interview. और इंटरव्यू की बात भी ऐसी हुई, मुझे आज दोपहर में बताया कि कल 10 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है बम्बई में, एक्सप्रेस टावर्स में, और खुद अरुण शौर्य आने वाले, ही विल इंटरव्यू यू. तो इट वॉज सो डिफिकल्ट. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. मैंने कहा मेरे पास मेरे सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, स्क्रैप बुक नहीं है, मैं आकर कहूँगा क्या? से डोंट बॉदर. दे हैव सीन योर एप्लीकेशन, दे सेड इसको बुलाओ,
तो मैं तुमको बुला रहा हूँ। तो मैं दौड़ भाग करके हाफते हाफते 10 बजे किसी तरह एक्सप्रेस हाउस में पहुँच गया। एंड देयर वाज नो इंटरव्यू एक्चुअली। अरुण शौरी had heard about my book. I don't know how many of you have heard of Arun Shourie. After this lecture, do look his name up on the internet. That is one of the most iconic figures in journalism and very, very closely associated with investigative journalism. Later on, he became a minister also in the central government. But that is a name all journalism students must know. I'm sure you will look it up later. In just one line, Arun Shourie is the father of investigative journalism in our country. And he said, tell me about your book. You are MA in English. I have seen your answers to questions. You write quite all right. Tell me about your book. So आधा घंटा मैंने उसको मेरी किताब के बारे में बताया. Then he says, Vinay, you have an excellent record, very bright future, but sorry, we can't take you. It's like the old Hindi movies. तो हीरो खड़ा होने लगता है कि और कुछ संकट आता है उसके ऊपर. सो मैंने कहा भाई लेकिन मैं आई हैव कम टू जॉइन एक्सप्रेस. So how can you join? Because we are looking for people who will work on the desk. And they will not go to the field. The reporters will file stories and the desk finalizes them. क्योंकि जगह लिमिटेड रहती है. एक याद रखिए, जितना बड़ा पेपर उतनी जगह उसमें कम होगी, इसलिए क्वालिटी ज़्यादा होती है. और जितना छोटा पेपर आपको चाहे जितनी जगह मिलेगी लेकिन क्वालिटी नहीं होगी, डाइल्यूशन होगा. तो मैंने कहा मैं तो डेस्क के लिए आया ही नहीं हूँ. मुझे लगा था कि आप मुझे रिपोर्टर बनाने वाले हो. तो अरुण ने कहा कि भाई पहले तो डेस्क पर काम करना पड़ेगा. तो मैंने कहा क्यों? तो अरुण ने कहा कि भाई जर्नलिज्म की स्टाइल अलग होती है लिखने की. तो मैंने कहा मैं जो पढ़ता हूँ कॉलम्स में, देयर इज ए प्रॉवर्ब, मरता क्या नहीं करता. मैंने कहा अभी ये तो लेने वाले ही नहीं है, तो लेट मी बी ब्लंट. तो उन्होंने कहा कि भाई वो ट्रेनिंग लैंग्वेज का ट्रेनिंग होता है. मैंने कहा जो मैं पढ़ता हूँ रोज़ के पेपर में मैं 2 महीनों में सीख जाऊँगा. लेकिन मुझे किसी तरह यहाँ से because sir had not done his masters in or degree course in journalism, no formal education in journalism, right? So there is a certain style, you have to develop that acumen, but there was this confidence of course that he can pick it up because it was language proficiency like complete. It was more desperation and less confidence. मैंने कहा नकार तो उन्होंने दे ही दिया है, लेकिन देखते टेढ़ी उंगली से घी निकल सकता है कि नहीं. तो मैंने कहा मैं 2 महीनों में सीख जाऊंगा. देन इसी मैंने कहा आपने कहाँ ट्रेनिंग लिया था जर्नलिज्म का? आपने तो कहीं डेस्क पे काम नहीं किया. आप यूनाइटेड स्टेट से आए, तो मैं आपकी जगह तो नहीं मांग रहा हूँ. My exact words were, I am not asking for the top, but don't me join at the bottom. Give me somewhere in between. लेकिन गुणी आदमी दूसरों के गुण पहचानता है. गुणी गुणम वेत्ति, वेत्ति यानी जानना. दिस इज संस्कृत. तो अरुण की आंखें चमकने लगी. तो उसने कहा देखो अभी आई अंडरस्टैंड योर डिज़ायर, योर अर्ज टू जॉइन जर्नलिज्म. हम तुम्हें एक ट्रायल असाइनमेंट देंगे. गुजरात जाओ, इंडियन एक्सप्रेस का कॉरेस्पॉन्डेंस इस आइडेंटिटी से, और यू राइट 3 आर्टिकल्स आफ्टर कमिंग बैक. 1 week of tour of Gujarat and then come back and write 3 articles.
तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कब जा सकते हो? मैंने कहा कि इसी इसी समय हाँ, आफ्टर वी आर डन आई विल गो टू गुजरात। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट है इन जर्नलिज्म। इन जर्नलिज्म में मैं फुर्सत से करूँगा, मैं बाद में करूँगा, मुझे उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, यू विल नेवर बिकम ए गुड जर्नलिस्ट। You should do something yesterday. If not possible yesterday, you should do it today. तो मैंने कहा मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे टिकट का इंतज़ाम कर दीजिए। सब हो गया, मैं पुणे आया ही नहीं, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। कपड़े वगैरह मैंने उस इन द आफ्टरनून आई वेंट परचेज ए कपल ऑफ जीन्स एंड शर्ट। मार्च महीना था, गुजरात में जाने के लिए कोई ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। मैं आया, 3 आर्टिकल्स लिखे और फिर सडनली आई बिकम रोविंग कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। रेविंग नहीं है, रोविंग। यू गाइज आर यूज्ड टू रेव, इट इज रोविंग। रोविंग इज मूविंग, मूविंग विथ हिम। Wherever the news is, the correspondent has to go there and not restricted to a specific geographical area. आपको ऑफिस कोई काम नहीं देगा। ऑफिस विल पे फॉर योर ट्रैवल एंड ऑफिस विल पे यू मंथली सैलरी, और यू शुड मूव अराउंड फ्रीली, फाइंड आउट वेयर पीपल्स प्रॉब्लम्स, जिनको सॉल्व करना तो दूर रहा, लेकिन जिनके तरफ ध्यान भी नहीं है, जिन्होंने प्रॉब्लम सुलझाने हैं उनका ध्यान भी नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स पर तुमको लिखना होगा। So was it more of a like specifically meant as investigative or more of development journalism? What was there in mind? I am coming to that. Initially, Arun had both in mind. He said महाराष्ट्र में इतने NGOs है, उस समय NGO ये टर्म भी नहीं थी, वॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्स कहा जाता था, स्वयंसेवी संस्था, मराठीमध्ये हिंदीमध्ये स्वयंसेवी संस्था, एंड इन इंग्लिश वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशंस, वॉलंटरी इनिशिएटिव। और क्राइम है, देन करप्शन है। ये 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में सबसे बड़े वॉचवर्ड्स है। बोथ आर स्टार्टिंग विथ C. One is crime and other is corruption. I don't know which should come first. And corruption is also crime. And whenever crime happens, there is some corruption. अभी ये जो उल्लास है, बदलापुर वाली केस है, और पोर्शा केस पुणे हाँ, में वो जो देख रहे हैं आप, कोर्ट ने भी इनकार कर दिया कि ये इनकाउंटर नहीं है, आपने उसका मर्डर किया है। तो that is different, but at that time the idea was that office, I will be answerable to only to Arun Shourie and the editor in Bombay, हिरणमय कार्लेकर, जो अरुण शौरी के भी सीनियर थे और जिनको कलकत्ता की बैकग्राउंड थी। तो उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविज़म काफ़ी देखा था, उसमें हिस्सा लिया था। तो वो और अरुण शौरी मेरे इमीडिएट बॉस रहे। एंड देन आई स्टार्टेड। उस समय किसी को मालूम भी नहीं था कि ये रोविंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है, बड़े बड़े लोगों को। first roving correspondent in India. Because there was no, what I'm saying is there was no role model for me. I was entirely on my own. And my ignorance of journalism was such, ये लिखा है मैंने सब, कि मुझे न्यूज़ को स्टोरी भी कहते ये मालूम नहीं था। जब मुझे राहुल डिमोंटे ने कह दिया कि अभी गुजरात जा रहे हो, वो स्पेशल रिपोर्ट्स तुम बाद में लिखोगे, लेकिन कीप सेंडिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन बिटवीन। अब मैं तो भला लिटरेचर का आदमी, मुझे स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी,
ट्रू स्टोरी और फॉल्स स्टोरी। मुझे न्यूज़ को स्टोरी कहते ये भी मालूम नहीं था। 2 दिन में मैं सीख गया वो सब। दिस इज सेकेंड लेसन, डोंट शो योर इग्नोरेंस, डोंट फ्लॉन्ट योर अचीवमेंट्स, बट डोंट शो योर शॉर्टकमिंग। खुद को अप्लाई करो, हर चीज़ समझ में आती है। तो हुआ ये कि मैं गुजरात गया और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला था। एंटी रिजर्वेशन स्टर चल रहा था गुजरात में, यानी अभी जो मराठा आंदोलन है महाराष्ट्र में उसके बिल्कुल विरुद्ध, उसका बिल्कुल उलट कि ये रिजर्वेशन बंद कर दो। इसलिए गुजरात में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें एक न्यूज़ थी कि पुलिस फायरिंग में एक ही घर के बाप और 2 बेटे मारे गए। तो मैंने कहा ये तो मामला, ये बिल्कुल ये बदलापुर वाली बात हो गई ना। जनता का आंदोलन है, हाँ पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एक घर के 3 आदमी, तो मुझे लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, तो वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। तो इतना वो दूर, इट वॉज इन द इंटीरियर, 80 और 100 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। और आज तो चकाचक समृद्धि मार्ग सब जगह हो गए। उस समय नेशनल हाईवे भी 20 फुट का हुआ करता था, 7 मीटर 22 फीट। तो ऐसे कंडीशंस में, और नेशनल हाईवे छोड़कर यू हैड वेरी बैड रोड्स और नो रोड्स। तो मैं वहाँ गया, उसका इन्वेस्टिगेशन किया, फिर रिपोर्ट लिख के भेज दिया। तो बम्बई से डैनियल का फ़ोन आया, यू सेंट ए वेरी गुड स्टोरी। मैंने कहा ये बात है, इसको स्टोरी कहते। तो मैं ऐसी तो स्टोरी है कि What was the issue there? I mean, how come they, all 3 of them were killed? no, it was police excess. Okay. See, there was a big mob of Patels and the police first fired in the air. So the mob dispersed and the police chased. और वहाँ पर ऐसी छोटी गली थी, तो ये 3 लोग अपने घर में जा कर के बैठ गए। तो पुलिस को लगा कि ये छिप रहे वहाँ पर, इसलिए उन्होंने वो खिड़की के बाहर से बंदूक डालकर गोलियाँ चलाई। मैं 30 साल बाद वहाँ गया था, वो घर अभी तक वहाँ पर है, वो गोलियों के निशान भी है। और उस घर की जो यानी उन बेटों की माँ और उनका जो बाप मर गया, उनकी पत्नी, वो भी जिंदा थी। मैंने कहा भाई इस घटना से मेरा जर्नलिज्म शुरू हुआ है। आपने वो बोर्न सुप्रीमेसी फिल्म देखी है? तो मुझे उसके बारे में, उसमें जिस तरह की गिल्ट है कि वो गलत कारण से गलत आदमी का उसने कत्ल किया है, खून किया है, तो इसलिए ही गोज एंड मीट्स द कपल्स डॉटर। So similarly, I went, I met that old lady. She had absolutely no memories. She had all become almost senile. मैंने उसकी दवा पाने के लिए कुछ रकम उसको दी और मैं वापस आया। लेकिन एक टूर में मेरा सब ट्रेनिंग हो गया। So what were the things that you learned in that one first tour? वन, जैसा पहले कहा कि डोंट शो योर इग्नोरेंस। तो मैंने क्या किया, मुझे तो मालूम नहीं अब क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी वही सिलसिला हुआ। अहमदाबाद के एडिशन का जो रेसिडेंट एडिटर था, उसको बहुत गुस्सा आया, विक्रम होरा, और उसने कहा कि हम यहाँ गोटियाँ खेल रहे कि डैनियल बम्बई से तुमको भेज रहा है, हम काम नहीं कर रहे हमारा। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम माय ऑफिस, यू कैन यूज़ द टेलीफोन, यू कैन यूज़ द टेलीप्रिंटर, लेकिन कोई किसी तरह की मदद तुमको नहीं करेगा। Right? So you have to imagine. नहीं प्री मोबाइल नहीं, प्री एसटीडी फोन्स, उसके पहले की बात है। आपने अगर अर्जेंट ट्रंक कॉल बुक किया तो दूसरे दिन मिलता था।
लाइटनिंग कॉल वी यूज्ड टू गेट सेकंड डे। 24 घंटे रुकना पड़ता था, अब 24 सेकंड में आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो बिकॉज आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन बॉम्बे, आई कैन रीड गुजराती। तो मैंने कहा अब ये तो एडिटर ने तो मुझे एक लाती मार दी। तो वहाँ पर गुजराती डेलीज ढेरों पड़े थे, मैं गुजराती डेलीज पढ़ने लगा पिछले 2 दिन के, उसमें ये घटना मुझे मिली। तो सेकेंड इज रीजनल लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। जैसा मैंने कहा कि मेरे रिपोर्ट इंग्लिश में आते थे, लेकिन घटना महाराष्ट्र में घटती थी, घटना गुजरात में घटती थी, घटना छत्तीसगढ़ में घटती थी। तो वहाँ पर जो भाषा है वो आपको आनी ही चाहिए। इसमें भी इन द कंक्लूडिंग रिमार्क्स आई हैव सेड कि द मोर वी इन्वेस्ट in regional language journalism, the quality of English journalism will also improve. Because basically that is where the raw material for all journalism exists, in the mofussil, in the villages, in the district places. तो जिस तरफ आप जा रहे हैं, जिस प्रदेश में आप जा रहे हैं, वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। Say, I am a very lucky person. I grew up, my childhood was spent in a cosmopolitan, multilingual place like Bombay. I know 6 languages very well and 3 languages broken. Marathi, Hindi, English, Sanskrit, Kannada, Gujarati. These are the 6 languages I know quite well. संस्कृत का तो अभी जर्नलिज्म में कोई वैसे संबंध नहीं रहता, लेकिन और ब्रोकन बंगाली, ब्रोकन तमिल, ब्रोकन कोंकणी। यानी कि मैं जब बंगाली बोलने लगता हूँ तो बंगाली आदमी मुझसे हिंदी या इंग्लिश में बात करने लगता है, वो इतनी ब्रोकन है। लेकिन जब वो बोलता है छोटे छोटे वाक्यों में, मैं समझ सकता हूँ। सेकेंड इज इफ़ यू नो वन मोर लैंग्वेज, इट्स नॉट ए बर्डन, इट्स एन एसेट। और अगर आप पढ़ भी सकते हो, अब मराठी और हिंदी के बीच पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गुजराती का जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी के बहुत नज़दीक है, लेकिन ये साउथ इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ना बिल्कुल मुश्किल है। वैसे बंगाली की लिपि, उड़िया की लिपि वो भी मुश्किल है, लेकिन गुजराती लिपि मुझे आती थी। तो जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं वहाँ की भाषा और लिपि आपको आनी चाहिए। आपने उसमें कम से कम आप पढ़ सके, ये अच्छा है, बात तो करनी ही पड़ती है। तीसरा, विच आई ऑलवेज कोट, इन जर्नलिज्म नथिंग इज यूजलेस। एवरीवेयर यू हैव स्टोरी। हर घटना के पीछे कुछ न कुछ स्टोरी होती है। और ये जो कहते हैं ना कि डॉग बाइट्स मैन, अगर कुत्ता आदमी को काटता है तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन जब आदमी कुत्ते को काटता है, दैट्स ए रॉन्ग डेफिनेशन। कुत्ता आदमी को काटता है, उसमें भी न्यूज़ हो सकती है। कुत्ता किसका था, उसको रेबीज का टीका लगाया था कि नहीं, कुत्ते को उस लाइसेंस लिया था क्या, परमिट लिया था क्या, कुत्ते को रास्ते में क्यों छोड़ा, यानी इट बिकम्स ए सिविक इशू। तो संस्कृत श्लोक ऐसा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा अक्षर नहीं होता जिसमें कोई अर्थ नहीं है। हर अक्षर को कोई ना कोई अर्थ है। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी वनस्पति नहीं होती कि जिसमें कोई औषधि गुण नहीं है। अयोग्यम वस्तु नास्त्येव, कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती। योजकस तत्र दुर्लभ, आपको मालूम चाहिए, मालूम होना चाहिए और सीखना चाहिए कि उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता। तो नेवर, एक फिल्म आती है देखो, नेवर बैक डाउन, नेवर बीट डाउन, वो एक फिल्म आती है। उस तरह नेवर से डाई स्पिरिट,
मैं जब पहली सकाल में छोड़ देता, भाई ये मुझे नहीं ले रहे, तो मुझे बस टीचिंग में जाना चाहिए। मैं टीचिंग में आया बाद में, लेकिन एज ए विजिटिंग फैकल्टी आया। छोड़ना नहीं, टिल यू हैव मेड द मैक्सिमम एफर्ट। जितनी कोशिश आप कर सकते हो उतनी करना चाहिए। यू हैव टू गो टू दैट एक्सट्रीम। What about people skills? Because you get information from people, so you have to be able to communicate well, get into their hearts and all that. So how did you manage that in a completely different land on your very first assignment? ये गुजरात वाली स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। मैंने उस स्टोरी का ये एक हिस्सा है। तो बिलिया नाम का विलेज है, अब तो विलेज नहीं रहा, अब इट हैज बिकम ए गुड टाउन। कहाँ है मुझे मालूम नहीं, कहते मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है। मेहसाणा के बाद 30 किलोमीटर से आपको हाईवे छोड़कर जाना होगा, इससे ज़्यादा किसी को कोई मालूम नहीं। फिर एसटी स्टैंड पे पूछा तो थोड़ी सी जानकारी मिली कि बिलिया कहाँ है, कैसा है। और फिर उस समय चूँकि आंदोलन चल रहा था गुजरात में, तो सब हलचल ठप हो जाती थी विदाउट एनी वार्निंग। रेलवे ठप हो जाती थी, बस ठप हो जाती थी, हाईवे बंद हो जाता था। तो इसलिए मुझे हर जगह जब जब रुकावट आई तब तब मुझे किसी लोकल आदमी की सहायता से आगे जाना पड़ा। फिर एक ट्रक में लिफ्ट लिया, और तो सी ट्रक ड्राइवर्स, if they open their eyes, if they keep their eyes open, not only they drive well and safe, but they can be a big source of information. ऐसा नहीं सोचना कि ये ट्रक ड्राइवर गवार है या मैं पढ़ा लिखा हूँ। और अनपढ़ आदमी सबसे ज़्यादा चौकस होते हैं। दिस इज़ वेरी फनी, बिकॉज अनपढ़ आदमी को मालूम है कि उसका जो ऑब्जर्वेशन है वही उसका एजुकेशन है, उसके पास तुम्हारी डिग्री नहीं है। तो अनपढ़ आदमी के पास बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन अनपढ़ आदमी इन्फॉर्मेशन देते समय एक्यूरेसी का कोई ख्याल नहीं रखता। तो यू हैव टू फिल्टर इट। सी लोकल सोर्सेस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन देयर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रॉपरली स्कैन्ड। ये अभी नया शब्द जो आया है स्कैनिंग, तो इट हैज़ टू बी प्रॉपरली स्कैन। हमारे ज़माने में स्कैनिंग था ही नहीं, पेशेंट वैसे ही मर जाता था, इसलिए हम फिल्टर कहते हैं। लेकिन उसमें से बहुत सारा जो काल्पनिक है उसको निकाल के यू हैव टू कम टू द फैक्ट। और उससे भी ये महत्व की चीज़ है, अहम चीज़ है कि उस इलाके के क्या प्रश्न है, समस्याएं हैं, लोकल अनपढ़ आदमी बता सकता है। तो यू हैव टू लाइक दे ऑब्जर्व यू, यू हैव टू ऑब्जर्व देम। लेकिन जब आप उनके साथ बात करते हो तो बताते थे कि आप पत्रकार हैं और किसी न्यूज़ स्टोरी के पीछे जा रहे हैं, या थोड़ा बहुत डिसेप्शन चलता है? कितना डिसेप्शन होना चाहिए, कितनी ऑनेस्टी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटिव? नहीं, ये तो ज़रूर बताना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर क्राइम स्टोरीज। ये तो ज़रूर बताना चाहिए कि मैं अखबार में काम करता हूँ। सी आवर प्रोफेशन इज हाईली रिस्पेक्टेड बाय हाफ एजुकेटेड पीपल। उनको लगता है कि एक बार पेपर में छप गया तो हमारा काम हो गया। इट्स ओनली बाबू लोग, उनको ये क्या कहते हैं, ये रहस्य मालूम है कि सिर्फ पेपर में आने से कुछ नहीं होता। द स्किन ऑफ करप्ट पीपल एंड द स्किन ऑफ पॉलिटिशियंस इज़ वेरी थिक। उससे कुछ नहीं होता। आप शरद पवार के बारे में कितना भी लिखो, मैं तो एक पूरी किताब लिख सकता हूँ शरद पवार के बारे में, टच से मस नहीं होते वो। मैं उनको टोकता हूँ, मैं उनको टांट मारता हूँ, मैं उनकी आलोचना करता हूँ, मैं उनको सवाल पूछता हूँ, वो देखते तक नहीं मेरी तरफ, क्योंकि वो पहुँचे हुए हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में तो वो निखिल विश्व में व्याप्त है नित्य सत्ता, तुम्हारे बिना डोल सकता न पत्ता,
अगर पेड़ का पत्ता भी हिलना है तो शरद पवार को उसमें कुछ ना कुछ उसका उनका हाथ होगा उसमें। कुछ नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल टच से मस नहीं होती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इज मोर परमानेंट देन पॉलिटिशियंस। एक बार ये राग दरबारी नाम का उपन्यास है हिंदी में, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स एवर टू कम फ्रॉम इंडिया। अगर आप मुझे पूछेंगे कि विच आर योर 3 फेवरेट नॉवेल्स, इंडियन नॉवेल्स, तो उसमें 3 में एक तो राग दरबारी न जरूर हो। Which are the other two? आई विल व्हेन वी कम टू दैट। So write down Rag Darbari. लेकिन राग दरबारी में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो करप्शन है, और जो लेखक है वो तो खुद यूपी गवर्नमेंट सेक्रेटरी थे, तो उनको सब मालूम था, बाहर से भी मालूम था और अंदर से भी मालूम था, और उन्होंने उपन्यास का नाम राग सरकारी ही रखा था। लेकिन लोगों ने कहा भाई नौकरी से हाथ धो बैठोगे, अब तुम्हें अभी 10-12 साल बाकी है तो इसमें ज़रा रूपकात्मक कर दो, तो उन्होंने राग दरबारी किया। तो उसमें ब्यूरोक्रेसी और फिर पॉलिटिशियन, इनकी जो मिली भगत होती है और दोनों एक दूसरे की हेल्प से पनपते हैं, और ब्यूरोक्रेसी तो ज़्यादा दिन एक ही जगह रहती है। पॉलिटिशियन को आप थोड़ा तो ये कर सकते हो, उसको कोई शासन कर सकते हो, सजा कर सकते हो, ब्यूरोक्रेसी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों पे जर्नलिज्म का असर नहीं होता। जर्नलिज्म का असर हाफ एजुकेटेड जो जनता है, जो अभी अभी पढ़ने लगी है, सोचने लगी है, उन पे खूब ज़्यादा होता है। But we have seen कि investigative stories have made an impact. Like for example, Altube's case that Arun Shourie had worked on. So it did bring about a change, and it should ideally. Otherwise, isn't it demotivating if we think कि this is not going to have any impact? Say, apparently what you are saying is right. लेकिन हमें अंतुले स्टोरी में इतनी कामयाबी मिली, इसका कारण ये था कि पॉलिटिकल बैकिंग हमको था, अंतुले को नहीं था। मैंने लिखा है इसमें कि एक बड़ा सत्ता नाट्य था। So there are other forces also at play, not only journalism. और क्रेडिट हमको मिला, क्रेडिट अरुण शौरी को मिला, क्रेडिट विनय हर्डीकर को मिला। मुझे लोग गरीबों का अरुण शौरी कहने लगे, पुअर मैन्स अरुण शौरी, क्योंकि मैं तो स्टेट लेवल का अरुण शौरी था। अंतुले के सब मामले में इंडियन एक्सप्रेस में देर वे 21 आर्टिकल्स इन ऑल, उसमें 7 अरुण के और 5 मेरे, तो क्रेडिट हमको मिला। लेकिन ऑनेस्टली बिकॉज अंतुले वॉज पोलिटिकली इचिंग इन द मराठा लॉबी, टू द मराठा लॉबी, उनको किसी तरह उसे हटाना था। तो हवा ऐसी बन गई कि इंडियन एक्सप्रेस ने हटाया उसको। लेकिन जिनका अभी मैंने नाम लिया और इतना गुणगान किया, वो भी थे उसमें। आंतुले ने कागज़ पे दस्तखत किए कि 10 मिनट में उसकी कॉपी एक्सप्रेस हाउस में आती थी। तो इसमें क्या जर्नलिज्म है? Developing inside sources is very very important. And You are how much putting time does it take? you are putting in a very sugar coated manner. कौन किसको इस्तेमाल कर रहा था उस समय? हाँ, अगर मैं जर्नलिस्ट के अभिमान से कहूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने पॉलिटिशियन को इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉइट किया। लेकिन यहाँ पर मुझे मालूम है कि उन्होंने हमको एक्सप्लॉइट किया, और फिर उनका कोई कहीं पर उनका नाम नहीं लिया गया। मराठीत म्हणतो ना करून सवरून नामा निराळे, तसं झालं। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे. लेकिन ये चलता रहता है इन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। समटाइम्स यू विल ऑल्सो बी यूज्ड, यू विल ऑल्सो बी एक्सप्लॉइटेड। ऐसी कई दो चार कहानियाँ
मैंने इस किताब में लिख दिए कि उस समय, और ये एक है, मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि जर्नलिज्म में फुर्सत से करूँगा, अभी और थोड़ा समय चाहिए, ये तो नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में तो यूर जजमेंट हैज़ टू बी वेरी शार्प एंड एक्टिव ऑल द टाइम। सी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कहाँ से शुरू होता है? उसका इतिहास ऐसा है कि समटाइम 100 years ago, इट वॉज आई थिंक सेकेंड डेकेड ऑफ द 20th century, कि अमेरिका में एक शहर के नाले, नदियाँ, गटर्स, वो ब्लॉक होते थे। तो उस समय तक किसी को मालूम नहीं था कि ये जर्नलिज्म का मामला है, ये सिर्फ सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का मामला नहीं है, ये मीडिया का भी मामला है। कोई इस तरह से सोचता ही नहीं था, लेकिन किसी ने सोचा और उसके बारे में उस शहर से जो अखबार निकलता था उसमें उसने आर्टिकल लिख दिया और फिर वो उन्होंने ठीक कर दिया। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद लोगों को ये जर्नलिज्म पसंद नहीं आया, यानी पढ़ने वालों को पसंद आया, लेकिन जर्नलिज्म जो करते थे उनको नहीं पसंद आया। फॉर फर्स्ट 20 years दिस वॉज कॉल्ड गटर जर्नलिज्म, कि आप काम ही क्या करते हो, जो शहर का पूरी जो गंदगी पड़ी है उसमें हाथ डाल के। और जब मैं आया इंडियन एक्सप्रेस में तो पूना में इसी तरह की एटीट्यूड थी कि वो आम नहीं करते, वो मगजमारी है, वो गंदगी में हाथ डालना है। क्योंकि जहाँ तक मेरा जर्नलिज्म का सिलसिला शुरू हुआ उसके पहले जर्नलिज्म वाज ओनली 3 things. One is political reporting, second is international political reporting, and third was cultural reporting. उसके बाद उसमें स्पोर्ट्स आ गया और फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ज़रूरत लोगों को महसूस होने लगी। तो इसमें ये तो बात रहती है कि आपको हमारे जीवन की जो निगेटिव साइड है उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। Was Watergate a major landmark in Yeah. drawing attention to investigative journalism? These people may not know much about the Watergate scandal. Do read it up. An American president has to resign. He was impeached and he had to resign. Only American president to be impeached. So do read it up later because that is what had kind of established the impact of investigative journalism, and there is a very good book also about it, how they went about getting that scoop and writing it and verifying it and all that. There is a One moment. Yes, There is sir. a wonderful film. नाम लिखो, लिख लो नाम. All the President's Men. All the President's Men. वाटरगेट पे. वाटरगेट क्या है? वो एक बिल्डिंग है जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का ऑफिस था, जिनका प्रेसिडेंट चुना गया था, और उस ऑफिस में से ही सब षड्यंत्र वो रचते थे. व्हाट वाज द conspiracy, what was the षड्यंत्र? Phone tapping and closely watching movements of the political opposition. लेकिन उसका ये जो टॉम हैंक्स वाली फिल्म है ना, फॉरेस्ट गंप, उसमें भी उसका थोड़ा जिक्र हुआ है कि फॉरेस्ट गंप वो वाटरगेट के सामने एक लॉज में ठहरा था और उसने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरे सामने वाली बिल्डिंग में चांद का टुकड़ा नहीं रहता, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में रात में लाइट जल रही है, इसलिए मेरी नींद खराब हो रही है, तो कुछ देखिए. और फिर पुलिस वहाँ से गई. दिस इज़ नॉट ट्रू, बट दिस इज़ फिल्म, हाउ द फिल्म पीपल लुक्ड एट इट. लेकिन वाटरगेट से ये साबित हुआ कि द बिगेस्ट व्हाट इज़ द अमेरिकन प्रेसिडेंट? अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल मैन और वुमन इन द वर्ल्ड. उसको भी आप हिला सकते हो. ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ताकत है. ये वाटरगेट ने साबित किया.
इसके बारे में कोई शक नहीं। Generally, the basic aim of journalism is to play the watchdog function. कि वैसे भी जो कुछ बुराइयां है, Watchdog without barking and biting. now it has become probably like that. So, like usual day-to-day story that draws attention. So more of a watch and less of a dog. नहीं, कुछ भी होता है ना, क्योंकि अगर सिंपल भी है, पॉटहोल्स है, ट्रैफिक जैम्स है, दैट आल्सो यू नीड टू पे अटेंशन टू. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविक जर्नलिज्म एंड investigative in terms of the time, effort and intention of the newspaper? What are the differences? You see, normal journalism is communication of information in the most exact and authentic manner. अब तो ये आसान भी हुआ है, ये कठिन भी हुआ है, क्योंकि आप अगर वहाँ पर आप मौजूद नहीं है तो आपको 10 लोग भेजेंगे 10 क्लिप्स, तो यू विल बी मोर कन्फ्यूज. हमारे ज़माने में मौजूद रहना ही बहुत कठिन होता था. और फिर अगर मैंने ऑफिशियल से यानी दूर से स्टोरी 5 मुझे करनी है तो मुझे टेलीग्राम भेजना पड़ता था. टेलीग्राम तो आपको मालूम ही नहीं होगा. टेलीग्राम पूरा कैपिटल लेटर्स में. It's not Instagram. It's proper post and so basically authenticity of the information is the first principle of journalism. Unbiased, as much objective as possible and accurate. Accuracy 100% नहीं होगी. सिर्फ परफेक्शन का डेफिनेशन ही है कि उसमें 2% एरर होती है. स्टैटिस्टिकली ए परफेक्ट थिंग हैज़ 2% एरर. तो ये एरर उसमें जो है वो कम करते रहना, दैट इज नॉर्मल रिपोर्टिंग. फिर उसमें भी थोड़ा बायस आता है. सपोज देयर इज ए फंक्शन और 4 पॉलिटिशियन के भाषण आए, तो आपके पेपर का जो पेपर की जो पॉलिसी है, उनकी जो नीति है, उसके अनुसार आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कहाँ शुरू होती है? उस पॉलिटिशियन ने ऐसा क्यों कहा? Going behind the story. There is a story behind the story behind the story. और उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है. सेकेंडली, अब आपने ये सिविक इश्यूज़ की बात कही. वाटर प्रॉब्लम है. आज ही मैं सुबह बड़े संकट में पड़ गया था. 8:30 बज गए, लेकिन देयर वाज नो पानी. नल में किसी नल में पानी नहीं था हमारे घर के. तो मुझे नहा के आना है, भाई आपसे बात करनी है तो साफ़ सुथरा तो होना पड़ेगा. लेकिन किसी तरह 9 बजे पानी आ गया. यहाँ पर पानी नहीं आया, बहुत दिक्कत हुई. दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ न्यूज़. लेकिन पानी क्यों नहीं आया? इस साल तो पानी की कोई कमी नहीं है. वी हैव गॉट एक्सेस मानसून दिस टाइम, और वो अभी तो रुकने को तैयार नहीं है. तो सप्लाई का कोई इशू नहीं है. लेकिन सप्लाई कहाँ होता है? सप्लाई पानसेट डैम से होता है, और वहाँ से पाइप में पानी आता है. उसमें कोई दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, ये उसकी टेक्निकल साइड है कि वहाँ पर भी पंप खराब हो सकता है, पाइप में पानी बंद हो सकता है. तीसरा कि किसी की इनएफिशिएंसी हुआ, ये भी हो सकता है. और अगर वो जो इनएफिशिएंट आदमी है वो बार बार वो गलती कर रहा है, दिस इज़ वेर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म स्टार्ट्स. और बार बार गलती करने के बाद भी उसको कोई किसी तरह टोकता नहीं, पूछता नहीं, तो क्या वो किसी का आदमी है? इन इन्वर्टेड कॉमर्स. किसी पॉलिटिशियन से, अभी बड़े शहर में तो पॉलिटिशियन को कोई पूछता नहीं है. जो कॉरपोरेटर्स होते हैं ना,
वो सेंट्रल मिनिस्टर से ज़्यादा कमाते हैं पुणे जैसे बड़े शहर में। और अगर वो किसी का आदमी है, किसी के काम करता है और इसलिए उसको सज़ा नहीं होती, तो फिर आपको वहाँ यू हैव टू टेक साइड। So this in crime also, in administrative decisions also. सिर्फ 3 जगह, एक सिविक इश्यूज में आपको दखल देनी है, दूसरे क्राइम में देनी है, और तीसरी जो है वो डेवलपमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, सबसे ज़्यादा मराठी में उसको पाणी मुहूर्त म्हणतात, सबसे ज़्यादा करप्शन डेवलपमेंट के नाम पर होता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ कुछ लिखते हो तो यू आर डब्ड एज एंटी डेवलपमेंट, एंटी पुअर। और अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो ऊपर से सब साफ सुथरा लगता है। मेरे अनुभव की बात बताओ तो अरुण शौरी ने मुझे ले लिया, लेकिन मेरा आउटपुट कम पड़ने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को स्कोप नहीं था। महाराष्ट्र एकदम क्लीनली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट था, ये मतलब है, उसका अर्थ नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में करप्शन की भी एक सिस्टम बनाई थी। ऊपर से आपको सब कानूनी लगेगा, ये लीगल लगेगा, प्रॉपर लगेगा, लेकिन अंदर से, मैंने पहले कहा ना, दाल में काला, वो तो होता ही था, लेकिन उसको ढूंढना मुश्किल होता था। महाराष्ट्र में पुलिस का करप्शन, गलत एफआईआर यानी पंचनामा, गलत एफआईआर फाइल करने तक ही था। और उधर उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में पुलिस जर्नलिस्ट को पकड़ के गड्ढे में फेंक के उसके ऊपर, यहाँ तक पुलिस की ज़्यादती थी। तो मैंने अरुण शौरी से कह दिया, भाई इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में नहीं होती है, इसलिए काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन उसमें से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए बहुत कम मटेरियल निकलता है। तो दिस इज़ प्रोफेशनल हैज़र्ड। लेकिन ये डेवलपमेंट के डिसीजन होते हैं, उसमें कहाँ कहाँ करप्शन होता है। सपोज एक बिल्डिंग बनानी है, अगर प्राइवेट प्लॉट है तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार उस प्राइवेट प्लॉट पे कितना एफएसआई देना है, इसमें अगर कोई दखल देती है तो वह करप्शन के लिए दरवाज़ा ही खुल गया। अब बड़े शहरों में देयर आर प्लॉट्स अंडर रिजर्वेशन कि यहाँ पर पार्क बनेगा, यहाँ पर पार्किंग बनेगा, यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा। सडनली द प्लॉट्स आर डी रिकग्नाइज। उसके पीछे ज़रूर 3 लोग होते हैं, याद रखिए। उसमें पीछे एक पॉलिटिशियन होता है, उसके पीछे एक बिजनेसमैन होता है, और उसके पीछे एक लॉयर होता है। ज्यांना मराठी कळतं त्याच्यात त्यांनी लोकहितवाद्यांनी असं म्हणले की ह्या ब्राह्मणांचं काम काय, तर यजमानाचे पापकृत्यात शास्त्रार्थ काढून देणे। तो 3 प्रोफेशंस इसमें आते हैं। एक उसमें आर्किटेक्ट आता है, दूसरा लॉयर आता है, तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है। ये तीनों लोग अगेन दे आर सो थिकली रिलेटेड विथ ऑल डेवलपमेंट एंड ऑल लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो वहाँ पर दाल में और काला पड़ सकता है। फिर उसमें आया कंस्ट्रक्टर, जिसको आजकल डेवलपर कहते हैं। अगर उसने मटेरियल में कुछ घपला कर दिया, आपने वो फिल्म देखी है जाने भी दो यारो, जरूर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज इन हिंदी। तो 2 हिंदी कॉमेडीज है, 2 ही हुई है। एक है चलती का नाम गाड़ी, दूसरी है जाने भी दो यारो, और तीसरी
चमेली की शादी, ये जो कॉमेडी थी हिंदी, वो थोड़ी उसके नज़दीक जाती है, लेकिन जाने भी दो यारों में कहता है वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर, वो कहता है शोभा जी हम सीमेंट में रेत मिलाते हैं, वो रेत में सीमेंट मिलाता है। तो रेत का पुल तो गिरने वाला ही था, तो बिल्डिंग गिरेगी, लोग मरेंगे, फिर सरकार मुआवजा जाहिर करेगी, फिर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। अब इंक्वायरी में कौन बैठेगा? यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। हमारे जो पूरी जो सरकारी इंक्वायरी होती है ना, उसमें भी एक षड्यंत्र होता है। सबसे बूढ़ा जज पकड़ते कि जो सामने देख तक नहीं सकता, अपने बलबूते पर चल भी नहीं सकता, कुछ तेजी से पढ़ भी नहीं सकता, और दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता। यू विल नेवर फाइंड ए यंग हेड ऑफ एन इंक्वायरी कमीशन। वो बूढ़े बूढ़े पकड़ के लाते हैं, तो इंक्वायरी चलती रहती है। और लोग कहते हैं जब तक मामला न्याय प्रविष्ट है, जब तक मामले की इंक्वायरी हो रही है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। ऑल दिस इज क्या कहते हैं उसको, गुड स्टेज, गुड प्लेटफॉर्म फॉर So much fodder. हाँ। There are two more words that are quite used often for sensationalism, perhaps, but one is scoop, like got a scoop. So, is it in any way related to investigative journalism? And the other is sting operation. Is it a tool that investigative journalists use, and do they get a scoop out of it? See, scoops ओरिजिनली स्कूप का अर्थ ये था कि अचानक कोई घटना What we call as breaking news. एंड वेरी शॉकिंग थिंग, हाँ, वो जो जिसको पहले मिलती है, अच्छा, ये जो सबसे पहले चलता है ना, उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। अपने आप आ जाता है। वो घटना हो जाने के बाद देयर इज स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेशन। और मैं अब बातों बातों में एक और बात बता दूं कि दो शब्द देखिए कितने नज़दीक है, इन्वेस्टिगेटिव एंड इंस्टिगेटिव। सिर्फ बीच में का VE निकाल दो तो इन्वेस्टिगेटिव इंस्टिगेटिव बन जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को भी इन्वेस्टिगेट करने पड़ेगा कि उसमें सचमुच इन्वेस्टिगेटिव कितना है और इंस्टिगेटिव कितना है। एंड दिस इज ए प्रोफेशनल टेक्निक। डिब्बे पे ढक्कन लगा हुआ है, उसको चम्मच से निकालते हैं हम। समटाइम्स आई सेड कि यू हैव टू नॉट एग्जैक्टली फॉल्स बट नॉट टोटली सब्सटेंशिएटेड न्यूज़ टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। ये भी हमको करना पड़ता है। तो मैंने मराठी में 3 शब्द मी मराठीत वापरतो, शोध पत्रकारिता, प्रतिशोध पत्रकारिता। प्रतिशोध तो हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, बदला, क्योंकि हर डिसीजन के पीछे एक किसी का फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। तो जिसका नुकसान हुआ है वो तो प्रतिशोध के पीछे पड़ेगा ही। और तीसरा जावई शोध, यानी हाँ, नॉट एग्जैक्टली काल्पनिक, फिर भी कुछ स्टोरी कर दो। कभी कभी इट वर्क्स, कभी कभी इट डज नॉट वर्क। तो ये तीनों इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। So those who want to get into this, they have to know what kind of story this is, and then decide. But what is the process? For example, investigative journalism mostly happens in an institutional environment. Like for example, we say that there are citizen journalists who work on their own. Maybe because of right to information, now they can get some information and start their instigative or investigative stories. But in an institutional environment, what are the checks and balances at different stages in investigative story? You see, when something is an incident happening, तो टिप की कोई ज़रूरत नहीं है। पुल गिर गया, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, पानी नहीं आया।
पैंडेमिक आई, लोग मरे, तो वहाँ पर टिप की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी ये गोखले इंस्टीट्यूट का मामला देखिए, हॉट टॉपिक इन्हें इन एन अपर सर्कल ऑफ पुणे, वेरी हॉट टॉपिक। एक आदमी को वाइस चांसलर बनाया गया और चांसलर ने जब उसको बनाया था तो उसको एक्सेप्ट किया। फिर 6 महीने बाद या कुछ महीनों बाद कंप्लेंट्स आई, इसलिए चांसलर ने इंक्वायरी कमेटी बनाई। इस बीच वाइस चांसलर में कोई फर्क नहीं हुआ है, उसके जो क्वालिफिकेशन थे या नहीं थे वही रहे, और उस इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि अभी इस वाइस चांसलर को इस जगह पे नहीं रहना चाहिए, इसलिए चांसलर ने उसको निकाल दिया। और फिर बाद में खुद चांसलर वहाँ से चला गया। व्हील्स विद इन व्हील्स जो कहते हैं ना, तो हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, और ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिसने निकाला भी और जिसको निकाला गया एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और फिर अच्छे है तो निकाला क्यों? और इससे बाधित जो लोग हैं, यानी नॉट एग्जैक्टली बाधित इन द सेंस ऑफ विक्टिम, लेकिन जहाँ तक इस निर्णय का कोई असर होगा, they are raising very basic issues. Now गोखले इंस्टीट्यूट का वाइस चांसलर कैसा होना चाहिए, तो उसके कोई शर्त है, सम कंडीशंस आर देयर। लेकिन अभी तक सिलसिला ये चल रहा था कि उसको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी 10 साल पहले टीचिंग एक्सपीरियंस की यानी निर्णायक ज़रूरत नहीं मानी जाती। इट इज़ वेलकम if he has teaching experience, but if he doesn't have any, still he is a good economist, he has good research experience, he has done good consultancy, he has worked on various policy making bodies, ये भी equivalent to teaching experience है। तो लोग कहते हैं कि भाई वाइस चांसलरशिप को टीचिंग से छुड़ाया, ये अच्छी बात थी। फिर आधे लोग कहते हैं कि नहीं टीचिंग तो होना ही चाहिए। और फिर अजित रानडे के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन की बात। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ऑल रूल्स हैव बीन फॉलोड, लेकिन फॉलोइंग द सेम रूल्स एक से विपरीत एक निर्णय कैसे हुए? But then should one always have a suspicious mind कि जो दिखता है वैसे नहीं होता है, उसके पीछे Suspicious कुछ ना कुछ होगा ही। हाँ। Is that a requirement of a good investigative journalist? सस्पिशियस नहीं, लेकिन एज आई सेड ट्राई टू गो बिहाइंड इट। So some leads might also lead कभी कभी nowhere. कुछ आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। Exactly. कभी कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, आई मीन लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट like CID, this is not like police, or this is not like psychiatry कि all the time criminal लोग, पागल लोग, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कोई अगर गलत चीज़ हुई है या आपको अंदेशा है कि ये चीज़ गलत है, तो हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड? सी इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, और समाज का, व्यक्ति का नहीं, समाज का कितना नुकसान होगा। ये गलत टेंडर दिया गया है तो समाज का कितना पैसा बर्बाद होगा, ये आपको सोचना है। अगर आप वो नहीं सोचते तो वो फिर इंस्टिगेटिव, इट बिकम्स रिवेंजफुल। और अगर कुछ लोग ऐसा भी जर्नलिज्म करते, फिर कभी ना कभी उनका भंडा फूट जाता है कि उन्होंने किसी से कुछ लाभ उठा के उस तरह का रिपोर्टिंग किया था। ये कभी ना कभी लोगों की समझ में आ जाता है। कभी जब भी कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है,
इसलिए इन्वेस्टिगेट हो रहा है। तो जिसने गलती की है उसको गुस्सा भी आएगा, वो थ्रेट्स भी आ सकते हैं, कुछ धोखा भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि थोड़ा डर लगा हो या ऐसी स्थिति आई हो, कभी परिस्थिति निर्माण हुई हो? डर नहीं लगा, लेकिन शॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको, इंटिमिडेशन हुआ उनकी तरफ से? हाँ हुआ था, में लिखा है। नहीं, फिर भी स्टूडेंट्स वुड लाइक टू हियर कौन सी है? देयर इज ए शुगर फैक्ट्री हाँ, in Kolhapur district, my own district. I am from Kolhapur. Very well known sugar factory. एक दिन पेपर में मैंने पढ़ा, एक गोडाउन चीनी शक्कर जल गई। भाई शक्कर कोई पेट्रोल है कि जल जाए, और एक गोडाउन। अब मेरा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का दिमाग चलने लगा। तो पहला काम है कि गोडाउन कितना बड़ा है, उसमें कितने शक्कर थी, कितनी ब्योरियाँ थी, कितनी पोती साखर होती, हर ब्योरे का वजन क्या होता है, तो इतने टन शक्कर थी, उसकी कीमत क्या होती है, और पूरी की पूरी जल गई। और किसी ने कोई पूछा नहीं। ये पुलिस की बात में न्यूज़ थी। एक्चुअली बातमी ये भी हिंदी शब्द ही है, लेकिन मराठी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बात तो हिंदी शब्द है ना। तो मैं गया वहाँ पर, तो पुलिस रिपोर्ट है। मैंने कहा आपने उसके आगे कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया? तो इन्वेस्टिगेट क्या करना है, हम इसको कारखाने में हुआ एक हादसा समझते, एन एक्सीडेंट इन द शुगर फैक्ट्री। पूरा गोडाउन जल गया, इनके यहाँ फिर से ये लखे अपघाताने जळालं। फिर अपघात क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ, कि शॉर्ट सर्किट हुआ, कि किसी ने कुछ दंगा फसाद किया, दगलबाजी की। तो पुलिस कहती है कि जब तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं करता तो हम उसमें दखल नहीं दे सकते, हम सिर्फ उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। मैं कहा फायर ब्रिगेड भेजी थी क्या? तो कहती है भाई शक्कर पे कौन पानी मारेगा, पानी डालेगा, तो शक्कर वैसे भी। तो मैं 3-4 बार गया और शुगर फैक्ट्री वाला कोई मिलने को तैयार नहीं। फिर एक दिन वहाँ के कॉलेज के, जूनियर कॉलेज का एक वॉज, आई थिंक ही वॉज हेड प्रिंसिपल, वो मुझसे मिलने आए, चलिए हमारे घर। उन्होंने मेरी किताब वगैरह पढ़ी थी। तो उस समय मैं भी जवान था, आई वॉज ओनली 30-32। तो अगर कोई कुछ अच्छी बात कहे खुद के बारे में तो मैं भी पिघल जाता था। अरे क्या किताब लिखी है आपने, आपके जैसा धाड़स हर आदमी के पास होता तो वगैरह, ऐसे कह करके वे लेके गए। तो फिर नाश्ता हुआ, चाय हुई। मैं कहा मैं अब चलता हूँ, 8 दिन में मुझे फिर आना है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर तो मिल ही नहीं रहा, मैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो कहते हैं हार्डिकर साहब बैठिए, इसीलिए आपको बुलाया है मैंने, और इसीलिए इतनी आपकी खातिरदारी की, आवभगत की, चाय पिलाई, नाश्ता दिया। पीपल आर वॉचिंग यू। तो मैंने कहा लेट देम वॉच मी, मैं तो पूरे कानूनी ढंग से काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई पर्सनल इशू तो है नहीं, न मेरे चेयरमैन से दोस्ती है, न मैनेजिंग डायरेक्टर से दोस्ती है, या मैं उनका दुश्मन हूँ। तो कहते लेकिन मैंने कहा शेयर होल्डर्स का कितना बड़ा नुकसान है, एक गोडाउन शुगर बर्बाद होती है और कोई कुछ नहीं कहता। तो उन्होंने कहा हार्दिकर साहब हर साल 1 या आधा गोडाउन शुगर बर्बाद होती है, कभी पिघल जाती है, कभी जल जाती है, कभी उसका पोल्यूशन हो जाता है। ये एक गोडाउन शुगर तो हमारी शुगर फैक्ट्री से गायब होती है हर साल। तो मैंने कहा तुम तो अब तो बड़ा मामला हो गया, मैं आप समझ नहीं सकते, क्यों समझते क्यों नहीं
कि ये सबकी मिली भगत है, पूरा डायरेक्टर बोर्ड इसमें शामिल है। The fact was, one godown of sugar was sold in the open market in black money. In figures of 40 years back, something like 50 crores every year. और जिसमें पूरा बोर्ड शामिल था। आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? और अगर उसके खिलाफ कोई कहता है तो उसने मुझे बताया कि दूसरे एक्सीडेंट भी होते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, हाँ, कोई गन्ने की खेत में जो गन्ने का जो पत्ता होता है उसको से दांत होते हैं, कांटे होते हैं, उससे गला उसका फट जाता है। मैंने कहा गन्ने के पत्ते से गला फटता है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि गन्ने के खेत में उसको ख़त्म कर दिया। और आपके ऊपर नज़र है, और मुझसे कहा गया है कि इसके हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम योर सेफ्टी इज़ नॉट गारंटीड। तो मैंने कहा मरने दो ना सब, ये इतनी बड़ी, और जब सब उसमें शामिल है, अगर सबकी मिली भगत से चल रहा है तो मुझे अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने की ज़रूरत तब महसूस नहीं हुई। सी माई लाइफ इज़ नॉट सो चीप कि इन सब हरामी लोगों के लिए, और उसमें डायरेक्टर बोर्ड कहाँ से आया? वो शेयर होल्डर्स में से आता है, वो तो सब एक दूसरे के भाई भतीजे होते हैं। तो ये तो भारतीय समाज में सदियों से चलता आया है कि अगर खून का रिश्ता हो तो फिर उसको संभालना चाहिए, और इसके कितने उदाहरण आपके सामने पड़े हैं। अब नंदन भी एमपी बन गई और भाभी भी एमपी बन गई, बारामती में जाकर देखिए। वो नंदन जो नहीं, भाभी जो एमपी बन गई है उसके मुंह से मक्खी तक नहीं हिली थी, और उसका नाम है सुनेत्रा। नींद सोती होगी राज्यसभा में, वैसे भी राज्यसभा में सब लोग सोते ही हैं, चेयरमैन छोड़कर। So, taking a step back is very very important. कि ऐसा नहीं कि ये कोई जुनून है, सवार हुआ है कि नहीं ये करना ही है, like It's not war. It's not a war. It's not war. Three things. It's not war, and it's not police investigation. And thirdly, कुछ लोग कहते हैं आपने न्यूज़ तो दे दिया इसलिए हम आपकी तारीफ करते, आगे आपने कुछ नहीं किया। अब मैंने आगे क्या करना है? आगे आपने करना है। लोग कहते हैं कि भाई आपको हमने अप्रिशिएट किया, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। द प्रॉब्लम विथ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इज पीपल लाइक टू रीड अबाउट इट, और ये तो मनुष्य का स्वभाव है। सिर्फ कोई अगर किसी की खींच रहा है तो तालियां बजाने वाले लोग खूब होते हैं। द पर्पस शुड बी दैट थ्रू जर्नलिज्म वी ओपन द रीडर्स आईज टू पॉसिबल एक्शन अगेंस्ट द करप्ट पीपल। अब करप्ट आदमी पॉलिटिक्स में है तो एक्शन का एक पत्ता तो आपके हाथ में रहता ही है कि आप उसको इलेक्शन में डिफीट कर सकते। एक ज़माना था कि इलेक्शन में एक या दूसरा उम्मीदवार के बारे में आप ये कह सकते थे कि ये करप्ट है। आप तो किसके बारे में आप कहोगे? सभी करप्ट है। इलेक्शन के हमाम में सब नंगे हैं। एक मराठी मैगजीन में उसके दिवाली अंक में मैंने अभी नया लेख लिखा है, राजकारण की टोली युद्ध से गैंग वॉर। महाराष्ट्र में 7 गैंग्स है, 4 ऑफिशियल है, एक फडणवीस की है, एक शिंदे की है,
नहीं, शिंदे की ऑफिशियल नहीं, ठाकरे की है, फिर वो बाळासाहेब थोरात की है, और फिर चौथी उनकी है। ये ऑफिशियल गैंग है। और फिर 3 अनऑफिशियल है, एक अजीत की है, दूसरी एकनाथ जी की है, और तीसरी हमारे प्रकाश आंबेडकर की है। और प्रकाश आंबेडकर की गैंग में और 7-8 गैंग्स है। फिर ज़मीन पे और एक गैंग किसकी है, वो जरांगे की। अब कितने बार उसने अनशन का संकल्प किया और कितने बार छोड़े, इसके ऊपर एक किताब लिख सकते हैं आप। इट्स बिकम ए हैबिट विथ हिम। ही डिक्लेयर्स इंडेफिनिट फास्ट, और लाइक शरद पवार रिसिग्नेशन, द फास्ट इज विड्रॉन। ये बैठा है मेरे सामने, इसने मुझे बताया शरद पवार ने रिज़ाइन किया। मैंने कहा 8 दिन में ही विल रिलेंट। वो 3 दिन में ही रिलेंट हो गए। इतना मैं उनको पहचानता हूँ, लेकिन उनको मेरे कहने से या लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में 56 इंच छाती, उनकी तो गैंग तो सुपर गैंग है, और उनको एक नंबर 2 मिला है जो किसी पाप से कतराता नहीं है, अमित शाह। वो दिखने में भी आप देखिए ना, वो सभ्य आदमी तक नहीं लगता। उसकी आंखें, उसके स्टबल, उसकी बॉडी लैंग्वेज। और फिर दूसरी भी गैंग है, लेकिन वहाँ गैंग का लीडर जो है वो रिलक्टेंट ब्राइडग्रूम है। वो पॉलिटिशियन दिखता ही नहीं है, लाइक हिज फादर। राहुल गांधी is the wrong man in the wrong place. He can't keep these wild bulls together. और फिर उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैंग्स के कौन है, वो अखिलेश यादव है, फिर ये बिहार वाले है, ममता बनर्जी है। तो पूरा सब जगह से ये गैंग वॉर्स हो रहे हैं। तो आज का ये जो समय, जब ये बच्चे जाएंगे जर्नलिज्म में, कुछ करना चाहेंगे, And I'm just a moment. I'm the first person to call it gang war, and I believe this phrase is going to catch up. तो उनके लिए is it a good time to think about investigative journalism, or it will not really yield anything? देखिए, आप तो जवान हो, लेकिन मेरे मन में मेरी उम्र आप जैसी ही है। मैं कहता हूँ मैं थक नहीं सकता, आपको थकने की इजाज़त नहीं है। एंड यू शुड बिलीव, जैसे एक इंग्लिश कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, व्हाट्स द अदर पार्ट, द टफ गेट्स गोइंग। तो आपको उस तरह का मन बनाना पड़ेगा। न, ये तो सच है कि हर बार आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। जितने भी क्या कहते वेपन्स आपके हाथ में हैं, वो लेकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखिए, हमारे घर के टॉयलेट जिस तरह हम हर दिन साफ करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि आज कर दिए अब करने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज द ह्यूमन सोसाइटी इज सच दैट देयर इज ऑलवेज ए फाइट बिटवीन गुड एंड बैड, समटाइम्स फाइट बिटवीन नोबल एंड इविल, लीगल एंड इलीगल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्कीम है माय फेवरेट सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, अबे साले प्यारी बहन की याद तुझे इलेक्शन में ही आ गई क्या? उसके पहले तेरी इतनी बहनें पड़ी थी, तुझे कभी याद नहीं आई?
और सबको सब बहनें प्यारी हो गई ओवरनाइट। तो मैं कुछ देखिए, अभी मैं तो जर्नलिज्म में नहीं हूँ और फिर मैं ऐसा मुंह फट आदमी हूँ कि अब मुझसे कोई कोलैबोरेट भी नहीं करता। उनको कहता है कि वो पटाखा रहता है ना, भुई चक्र, वो दूसरे के पैरों में जाए तो अच्छी बात है कि विनय हर्डीकर भुई चक्र है, वो अपने पैर में भी आ सकता है, तो उससे दूर रहना चाहिए। तो नोबडी वांट्स टू कोलैबोरेट विथ मी। एप्रिसिएशन बहुत करते हैं कि आप क्या निर्भय हो, आप क्या बोल्ड हो, क्या स्पष्ट शब्दों में आप सब बातें कहते हो, बस वहाँ रुक जाता है। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू फाइंड ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, IPL नहीं, PIL। IPL सबको मालूम है कि ये मैलाफाइड इंटेंट है कि इलेक्शन के समय पे ही ऐसी घोषणाएं होती है। कल देयर वर 150 डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। क्योंकि अभी किसी समय अचानक चुनाव की घोषणा होगी और फिर उसके बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा और फिर गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकी, तो ये क्या गवर्नमेंट की एफिशिएंसी अचानक बढ़ गई? तो ये सब जो मामले हैं, ये सॉफ्ट्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, टैक्स पेयर का पैसा है। और फिर बेशरम तो इतने हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का कल ही कुछ बयान था कि हम जनता का ही पैसा जनता को दे रहे। अरे फिर लिया क्यों? फिर आप देखिए ये कितनी यानी अंधे लोग हैं। अगर ज्ञान, व्हाट इज ज्ञान? गरीब, युवा, ये बीजेपी वाले तो संस्कृत और रोमन का कॉम्बिनेशन करने में बहुत माहिर है। गरीब, युवा, अन्नदाता, उसको भूखा रखते, वो खुदकुशी कर रहा है, और नारी मिलके ज्ञान मोदी को हुआ, उसने वो अमित शाह को ट्रांसफ़र किया। और ये जो छोटे छोटे गरीबों के मोदी और अमित शाह है, अगर जनता का पैसा है और जनता ने अपने पसीने से कमाई करने के बाद टैक्स के रूप में आपको दिया है, तो आप यू कैन स्क्वांडर इट लाइक दैट, और यू कैन स्क्वांडर इट इन एन इलेक्शन ईयर। तो ये सब चीज़ें जो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टैक्स पेयर्स एसोसिएशन को मैं अप्रोच हो रहा हूँ। टैक्स पेयर्स एसोसिएशन नाम की बॉडी है जिसका ऑफिस बम्बई में है। So there is a story, there is an investigation, but No. it's like a very open truth. When I file that litigation, it's an investigative story. Okay. It's a topic for investigation. लेकिन एक छोटी कॉन्ट्रडिक्शन भी है उसमें। सब टैक्स पेयर्स तो ईमानदार नहीं होते। जो मैंने पहले कहा कि ऐसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बड़ी आर्मी रहती है कि किसी तरह सरकार को कैसे भूखा रखना चाहिए। There were some very good investigative stories about financial frauds, like starting from Harshad Mehta to Satyam and all that. So that is another field that can be looked at. No, those are endless things. Because such things happen with the connivance of the establishment. But the connivance of the establishment, connivance यानी मिली भगत, connivance of the establishment cannot be established so easily. यानी जब सब लोग जब भ्रष्टाचारी बन जाएंगे तो भ्रष्टाचारी सदाचार बन जाता है, या भ्रष्टाचारी नॉर्मल आचार बन जाता है। उस तरह का मामला होता है। जो इतने बड़े स्कैंडल्स हैं ना, उनका कौन क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो अब ये इमरान का मामला देखिए ना, सब उसमें शामिल थे। तो करना तो चाहिए, जरूरत तो बढ़ती ही जा रही है, कमी नहीं हो रही है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लगता है। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इट्स द ओनली द इंडियन एक्सप्रेस दैट इज स्टिल engaged in investigative story. They are also part of the international forum
for investigative. They were in the Panama Papers and all that. There is an international forum of investigative journalists where Express is a part of. Other than that, the general media houses are not really into it. What kind of support is required from an organization to pursue serious investigative journalism? First thing is encouragement. So it should be a policy of theirs. उसको लगना चाहिए उस रिपोर्टर को कि मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, ये तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। दूसरा जो है, डोंट लुक एट दी कन्वेंशनल चैनल्स। सोशल मीडिया ये सबसे बड़ा चैनल आप लोगों को अवेलेबल है, और कुछ लोग ऐसे प्राइवेट नेटवर्क चला रहे हैं। अब ये वायर वाले जो लोग हैं ना, या फिर शेखर गुप्ता, इंसिडेंटली शेखर गुप्ता एंड मैं एक ही साल इंडियन एक्सप्रेस में वो ज्वाइन हुए थे। मैंने फिर जर्नलिज्म छोड़ ही दिया। केशव गुप्ता, शेखर गुप्ता ने जर्नलिज्म से हिंदू मैरिज किया, तो उसका मैरिज अब भी स्टेबल है। तो प्राइवेट चैनल जो है, सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पूरी तरह से सनसनीखेज बातों के पीछे पड़ा है। लेकिन सोशल मीडिया कैन बी वेरी बिग ओपिनियन मेकर, और उसका किसी तरह से अगर इकोनॉमिक्स आप बिठा सकते हो, तो सोशल मीडिया में इस नई पीढ़ी को ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि सोशल मीडिया तो न्यूज़पेपर से भी इज़ मोर कन्वीनियंट टू रीड एंड सी। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, इसीलिए नहीं हूँ कि समय बर्बाद होता है। एक तो पीजे रहते, नहीं तो फिर कोई बिल्कुल गलत डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन रहती है, नहीं तो सिर्फ फालतू बातें चलती रहती है। अगर सोशल मीडिया को हम सोशल मीडिया की जो पोटेंसी है उसके बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हो रहा। तो not much. You must know what you are seeking. See, information कलेक्ट करना एक बात है। इन्वेस्टिगेटिव में आपको इंफॉर्मेशन के पहले क्या ढूंढना है, नहीं तो फिर ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एग्जैक्टली। और इंफॉर्मेशन जब सिस्टम से आती है तो उसी में एक कैच है कि वो पूरी तरह से 100% सच तो नहीं होगी या ऑथेंटिक नहीं होगी। इट विल बी इन वन वे और द अदर नॉट एग्जैक्टली डिस्टॉर्टेड, बट इट विल सर्टेनली बी डॉक्टर्ड इंफॉर्मेशन। तो उसको भी यू हैव टू टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात ऐसी है कि ये बाकी चीज़ें जो है ना, वो आपको मदद कर सकती है, लेकिन बेसिक काम यहाँ होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसमें 3 बातें। एक, मैं किसी तरह का पर्सनल कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जिस तरह न्याय देवता अंधी होती है, उस तरह से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में होना पड़ेगा कि ये मेरे कोई नहीं है, हर इशू को 2 या 3 साइड से, लेकिन मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। 2, इसको एक्सपोज करना समाज के लिए आवश्यक होना चाहिए, नहीं तो गलत चीज़ें बहुत जगह दिन रात चलती रहती है। और तीसरा कि इससे जो मेरे रिपोर्टिंग का ढंग ऐसा रहना चाहिए कि लोग, यू शुड नॉट शॉक देम, यू शुड मेक देम थिंक। यानी पढ़ने वाले को लगना चाहिए, अगर ये लगता है पढ़ने वाले को कि भाई अरुण शौरी बहादुर है, विनय हर्डीकर बहादुर है, तो इट्स ए फेल्योर। पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ।
मैं भी इनकी मदद कर सकता हूँ। तो ये जो तीसरा जो है ना, इसमें हमारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अभी तक बहुत सफल नहीं हुआ है। इट स्टॉप्स एट दी पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स और कुडोज, सत्कार होते हैं, बड़ा नाम होता है, फिर वो आदमी चला जाता है, दूसरा कोई उसकी जगह पे आता है। लेकिन जनता में जिस तरह की जागृति पैदा होनी चाहिए और एक्टिविज़म पैदा होना चाहिए। और मुझे विनोबा ने कहा था, आमतुले के मामले में आचार्य विनोबा भावे कि आपने को कोर्ट में साबित करना होगा कि न्यूज़पेपर में लिखने से कोई उसमें कोई तुक नहीं है, आप कोर्ट में जाइए। मैंने कहा बाबा आप कहने लगे कोर्ट में जाओ, आप तो पूरी जनता की शक्ति पर आज तक आप का सब जिंदगी बिताई है आपने, जनता की शक्ति पे आपका विश्वास नहीं। तो कहते नहीं 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 कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। और फिर 2-4 हट्टे कट्टे सर्वोदयी आए, फिर मुझे उठा के दूर कर दिया कि तो अभी दूसरे को सवाल पूछने दो। तो ये एक्टिविज़म जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से ये एक्टिविज़म ट्रिगर ऑफ होगा, उसको कुछ चालना मिलेगी। In this book he has written कि ऐसा लिखना चाहिए कि it will make people think and it will help people form their opinions. Yeah. So that is very, very important. So I think that is what he has been trying to do that in the last 90 minutes, that making you think, making you form your own opinion. So we would now like to hear from you what you have thought about this interaction, what questions are there in your mind, what doubts you have or what comments you have. So the floor is open. Yes. We would like to hear your experiences during 1975 emergency. What you faced. I have written a book of 250 pages. Can you just describe it in a short, means what have you written or what you faced? आप लोग मुझे फिर बुलाइए ना। बिकॉज दैट इज आज का जो टॉपिक है उससे वो उसको जोड़ना कठिन है। It's a different. So let's about journalism, about investigative. See what sir has talked about. I think I'll summarize it. We have become the teacher Yeah. again. That somebody has given it. Yeah. कॉन्वर्सेशन ये डेफिनेटली लोनली जर्नी है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, और ये रिस्क टेकिंग जर्नी है। एंड लाइफ डिमांड्स मनी, लाइफ डिमांड्स फैमिली एंड लाइफ डिमांड्स मेनी थिंग्स। तो क्या ये करना चाहिए, और इस चीज़ को करने के लिए आप कोई एक पॉइंट बताइए कि सब लोग मोटिवेट हो जाए। कोई एक पॉइंट कि नहीं ये तुमने ये करना ही चाहिए। रिस्क आहेत आणि आपल्याला बाकी वी हॅव लाईक वी आर ओन लाईफ, वी नीड मनी, लाईक वी कॅनॉट पुट एव्हरीथिंग ॲट स्टेक. सो इन स्पाइट ऑफ दॅट, व्हॉट इज दॅट वन थिंग दॅट यू थिंक विल मोटिवेट the students to think of investigative journalism? Why would anyone think of it in spite of the risks? And See, it's just sensitivity to things going wrong. कि ये दुरुस्त करना चाहिए, ये ठीक करना चाहिए, और मैं करूँगा, मैं करूँगी. That should be the attitude. No, there is material for fire in the belly. We have to apply match. हर आदमी के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं गलत के सामने कुछ, गलत के विरुद्ध कुछ करूं, तो उसको ट्रिगर ऑफ करना चाहिए. यस. एक सीन हुआ था कि एक्टर रविंद्र महाजनी he passed away due to cardiac arrest. He was in Talegaon, he was staying alone. And उनकी मौत के 2 दिन बाद पता चला कि he has passed away due to the smell and all. तो उनके तब जो सीन हुआ था कि उनके बेटे को कॉल किया गया फ्रॉम मुंबई, सो ही वाज ट्रैवलिंग एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जर्नलिस्ट्स ने पूरी उनकी जो स्टोरी थी उनकी मौत की, वो बहुत सेंसेशनलाइज की गई थी. बहुत सारे एडजेक्टिव्स थे कि अकेले ही छोड़ दिया अपने पिता को, या फिर वो किसी
स्टूडियो अपार्टमेंट में थे, उसको अड़बड़ी चकोरी वगैरह, दैट वाज द सीन। एंड उनके बेटे ने करीबन महीने भर बाद उनके बेटे ने पूरी उसकी लाइफ स्टोरी, उनकी स्टोरी, फैमिली स्टोरी पूरी सेंसिबली एक्सप्लेन की एक पॉडकास्ट में, समुद्रपुरी। तो उसमें उसका यही सवाल था कि आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना, जब मैं ट्रैवल कर रहा था मुंबई टू पुणे, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जो, और मैंने आपको बताया कि मैंने अभी पिता को देखा तक नहीं है मैंने कि क्या सीन है वहाँ पे, तो उसके बिना मैं आपको क्या कंफर्मेशन दूँ या क्या स्टोरी बताऊँ। तो मेरा सवाल, उसका सवाल यही था कि मुझसे कुछ भी पूछे बिना आप लोगों ने इतने सारे एडजेक्टिव्स लगा के इतना हैमर क्यों किया मेरे पिता की मौत, जब आपको उसका एथिकली कोई हक नहीं था। सो व्हाट शुड हैव बीन द आइडियल इन्वेस्टिगेशन और आइडियल अप्रोच in this case or in any such cases that happen? In Ravindra Mahajan, yeah, like, Your answer is in your question itself. yeah. See, that will be the ideal situation कि आप किसी के बारे में कुछ लिखने के पहले उसको मिल सको, लेकिन अगर आप उसके बहुत नज़दीकी सोच से मिले हो तो यू कैन गो अहेड, क्योंकि ये बचाव कुछ लोग बड़े चालाकी से कि मुझे था ही नहीं, तो अगर आप फिजिकली वहाँ नहीं होंगे बट यू कैन इंस्टिगेट समथिंग थ्रू अदर्स, मॉनिटर इट, मैनेज इट, तो उसकी बारीकी में जाकर देखना होगा। आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं है, दैट इज़ ए लीगल एलिबाई। Yeah, no, in this case, like it was Ravindra Mahajan, the actor, Hmm. who died alone in his apartment and away from his family. So the media immediately started blaming the son for abandoning his father. So I think his question was that That I is mean, they should be more sensible and responsible. no, that is the irresponsible use of social media. एक घर में एक घटना हुई, आप क्यों बात का इतना बतंगड़ बना रहे हो? छोड़ दो, वो तो समाज से तो उसको कुछ लेना देना नहीं था। रविंद्र महाजन और उसके बेटे के बीच क्या हुआ, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में जो हुआ, तो एक्चुअली इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, That is the way the journalism is. एंड दैट इज व्हाट आई Yeah. don't like about this so-called thing social media. One and So stop watching that. That will yes. शोध पत्रकारिता करताना प्रत्येक वेळेला राजकीय व्यक्तीचाच इन्फ्लुएन्स असतो किंवा म्हणजे राजकारणी व्यक्तीमुळेच आपल्याला शोध पत्रकारितेत जावं लागतंय का असं तुम्हाला वाटतंय का? त्यामुळेच आपण त्याला खूप प्रोत्साहन देतोय असं तुमचं म्हणणं आहे? No, it's very simple. In a democracy, the policies are made and implemented by politicians. So every issue ultimately reaches there. But if you have a strong developed democracy, economic decisions are not taken by politicians. In democracies like United States or UK, they are much advanced than our democracy. In our society, policy making and also policy implementation, actually policy implementation should be with the bureaucracy, but हमारी bureaucracy totally politicized है. Unless you have a backing of a politician, you can't rise in bureaucracy. इसलिए ये मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है, और ये जितने जल्दी मजबूरी दूर हो जाएगी तभी जो असली डेमोक्रेसी हमारे देश में आएगी. कुछ ढूंढना भी होता है, पॉलिटिशियन काम सारा हर बात लेते हैं. प्रत्येक गोष्टीत शेवटी राजकारण्यांपाशीच येऊन थांबतो. That is a fact. प्रत्येक गोष्टीत शेवटी राजकारण्यांपाशीच येऊन थांबतो. That is आता a fact. आता तुझ्या म्हातारपणी नाही होणार असं. Yes, thank you. आम्ही त्या ट्रॅपमध्ये अडकलोय हे आम्ही मान्य करतो. सर 56 इंच की बात छोड़ के हम जहाँ रहते हैं वही घर से शुरुआत करते हैं. हम रहते हैं महाराष्ट्र में. क्या कभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है पॉलिटिक्स में कभी सफल हो पाएगा? क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कभी गटागुट खत्म होके घरानेशाही खत्म होके कोई नया आ पाएगा?
जनरली पॉलिटिक्स बद्दल आहे की घराणेशाही संपून नवीन कोणी नेतृत्व उदयाला येईल का, त्याच्यात इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम काही You should jump into politics. सर क्योंकि जब हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं पॉलिटिक्स में तो दबाव लाके या फिर एक दड़पण लाके हमको छुपा दिया जाता है। दबाव नहीं होता, पॉलिटिशियन का दबाव नहीं होता। हमारे पॉलिटिशियन इतने बेशर्म हैं कि उनको लगता है कि एडवर्स पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। गाली देने के लिए भी मेरा नाम लिया, उसका नहीं लिया। इसलिए पॉलिटिशियन का दबाव नहीं होता। दबाव तभी होता है जब हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स एंड हाई लेवल जो इकोनॉमिक पोर्टफोलियो है उसमें दबाव होता है। बाकी सब खुला है। और वो कहते हैं कि वो आदमी जो न्यूज़ है वो गलत सोर्स पे है या मेरे बारे हाँ मिसकोटेड मेरे बारे में मेरे विरोधक कुछ ना कुछ फैला रहे हैं और इससे भी काम नहीं चलता तो कहते हैं मैं एक दिन जनता की कोर्ट में जाऊंगा। तो पॉलिटिशियंस हैव लर्न टू हाउ टू एक्सप्लॉइट एंड हैंडल द मीडिया। वो मीडिया से डरते ही नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन के कहने से लॉ एंड ऑर्डर को कुछ नहीं होता। Does the law and order support investigative journalism? What are the you want to say legal protections for investigative journalism? जो हमारी इसमें आया नहीं था मुद्दा का defamation। मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। मैंने कहा भाई ये इशू सच है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। दैट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ इज माई प्रोटेक्शन। आई एम नॉट लाइक सलमान रश्दी कि मुसलमानों की भावनाओं को मैं ठेस भी पहुंचाऊंगा और फिर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए, नहीं। वन इज न्यूज़ वैल्यू फर्स्ट, सेकेंड इज हाउ मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड, and third is quality of writing. नसता तशा हे तू हायपोथेटिकल केस घेऊन मला गंडवायला बघू नको। मग तुला कळायलाच पाहिजे की या दोन्हीतली एक जास्त महत्त्वाची आणि दुसरी नाही आहे। नए जो जर्नलिस्ट आएंगे तो अगर जैसे आपने कहा कि बैड और गुड में चुनना इम्पोर्टेंट है, अगर हमें दो स्टोरीज आते हैं, एक स्टोरी मिलना मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, बट अगर दो स्टोरीज आते हैं और उसमें से अगर कौन सी स्टोरी इम्पोर्टेंट है और एज अ न्यू जर्नलिस्ट कौन सा हम दिखा पाएंगे, तो वो कैसे चूज करेंगे? And third is quality of writing. पण सर जर समजा दोन्ही पण स्टोरी तितक्याच इम्पॉर्टंट आहे, हायपोथेटिकल केस घेऊन मला गंडवायला बघू नको। तुला कळायलाच पाहिजे की या दोन्हीतली एक जास्त महत्त्वाची आहे, दुसरी नाही। समजा तुमचं तो पहिली स्टोरी होती की तुम्ही जे गुजरातमध्ये तुम्ही जे एका घरात तिघ जण मारे गेले तेच होते आणि तेच फॅक्टरी मधलं होतं शुगरवाली। दोन्हीपैकी जर तुम्हाला पहिली स्टोरी जर कोणती भेटली असते आणि तुम्ही कोणती केली ना मी, एका घरात 3 मेले त्याची करून मोकळा झालो मी नाही असा विचार केला। दोज डिसिजन्स आर व्हेरी फास्ट आणि ते ट्रेनिंग नाही येतं। तरी ती असं म्हणत नाही की दुसऱ्या गावात पुन्हा एकाच घरातली 3 माणसं मेली असती तर तुम्ही तुझं कुठली स्टोरी घेतली असती। If it is a team, maybe it can be given to somebody else. You know, if it's an institution that is invested in investigative journalism, there will be somebody else also. If those stories are equally important and time bound, then I'm sure the responsibility can be shared. हाँ, अर्जेंसी कितनी है क्योंकि जर्नलिज्म में आज की न्यूज़ कल बर्बाद हो जाती है, उद्या सविस्तर दिन हे चालत नहीं। आपने अभी तक जितने भी रिपोर्टिंग या आर्टिकल्स लिखा है उसमें से आपका सबसे मेमोरेबल कौन सा है या फेवरेट जो भी? मैंने अनमेमोरेबल कुछ लिखा ही नहीं। मैंने अनमेमोरेबल कुछ लिखा ही नहीं है रियली। मुझे लोग हर बार कहते हैं कि आप बोलते बहुत और लिखते कम हो। एक्चुअली इट्स ए टॉन्ट टू मी। लेकिन
जो A1 है वही लिखता हूँ, तो सब मेमोरेबल है। Oh, I forgot to tell you, you see in the last 3-4 years, there is a portal called Sadhana Kartavya. साधना यानी वो फिल्म एक्ट्रेस नहीं या आध्यात्मिक साधना नहीं, साधना वीकली इन मराठी, उनका एक पोर्टल है साधना ही नाम से, उसमें आई हैव रिटन समथिंग लाइक ओवर 50 आर्टिकल्स इन इंग्लिश. So those were, and most of them are on national issues and international issues. So those who are interested may have a look at that. मैं उसका एक ई बुक भी करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी साधना इंग्लिश ऐसा सर्च दीजिए, साधना इंग्लिश विनय हर्डीकर, आपको मिलेगा वो. Before I hand over to Anuja, thank you sir so much for this very open. I don't know, I enjoyed. Yes, really enjoyed, and thanks friends for your interest in this interaction and the very good questions that asked you. So I think such interactions are quite enriching and they make us think, which is more important. It's not only spoon feeding, but we should develop our own thought, isn't it? That is what I think we were trying to get to, and we have achieved to a certain extent. Anuja. 10% proud of what we are teaching actually. And what sir said today is actually, it's like a manifestation. Like most of the times, like what we teach in the class as journalism teachers, we can actually see those things coming into reality here on stage. And sir, I would like to point out one thing. I'm the second person to call gang war politics, that concept you say. So I'm the second person to say it in the class only, openly, that today's politics, what we see, it's a gang war. Yeah, I've said it openly many times in the class also. Yeah, so also I would like to mention what sir said, that what you spoke today is what we are like learning and making students learn, like that emergency, Watergate scandal, whatever sir said today. And for that only, ma'am, I said that I'm really happy today that what we are teaching is like a manifestation, like Watergate scandal, or sir mentioned about even emergency also. To some extent, yes, we could incorporate those things, historic things, whatever has happened as a part of investigative journalism. We could teach the students to some extent. Definitely, as sir said, we would like to hear the real experience, what he experienced during that time. So once again, I would like to extend thanks to sir, to ma'am for your enthusiastic participation. And the things that you have learned today, students, for holding power to account and informing the public, please make sure what sir has taught, it is going to help you in the long run if you really wish to be an investigative journalist. So keep questioning, keep digging, and never stop seeking the truth, as what we learned from sir today. Thank you once again, and I request all the students to come forward for a group photo.